So class, good morning. And as you know that we are talking about the preparation of aldehyde and ketone by some special reaction. Clear? Yeah. And one more things here, we are not discussing here about the mechanism of these special reaction, because we know that after using the different kind of reagent, we have the different kind of mechanism. Clear? So it is not possible, and it's not in our syllabus also. Clear? So today we see that a special reaction to prepare aldehyde and ketone, yeah, you can say the reduction of nitriles and esters. Yeah, first of all we discuss only the nitriles. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, nitriles का reduction करवा रहे हैं. Clear? Now you see that you have the various reagent to reduce this nitriles. Clear? तो एक हम देखते हैं आपका जो फर्स्ट, जिसे हम लोग इन नेम रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं कि व्हेन दिस नाइट्राइल्स आर रिएक्ट विद द स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, इट विल गिव्स यू इमीन. ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स on the hydrolysis of this amines we will get the aldehyde. Clear? That means the steps are, you have the first of all this nitriles is react with stannous chloride SnCl2 and hydrochloric HCl, yeah, hydrochloric acid, that means HCl, and after reacting these one it will gives you imine. It will gives you imine, and this imine on further hydrolysis gives you aldehyde. ठीक है, this is your reaction. Yeah, this is your reduction of nitriles. It is clear. And there is a very important thing is that if you are using the SnCl2 and HCl to reduce the nitriles, so this reaction goes for the Stephen reduction. Clear? Last time we also discussed about the Rosenmund reduction. It is clear. And here this special reagent, that means SnCl2 and HCl, is called the Stephen reduction. Clear? So now see that one example. This is your reaction process and the steps how the reduction of nitriles will be occur. Now you have RCN nitriles. You have clear. On the reacting with SnCl2 and HCl, this will give you imine. Imine, that means the reduction of this one. क्या हो जाएगा? RCH double bond NH. Clear? This RCN nitriles is converted into imine RCH double bond NH. So this is your imine. Clear? And you are seeing here, this imine is further on hydrolysis. That means H3O positive, you can see the H2O, you have the hydronium ion, and this will convert into RC double bond H. Clear? RC double bond H, that means you have now aldehyde. Clear? So this is your corresponding aldehyde from your nitriles. Clear? क्या किया आपने? सिंपल हम लोग क्या करें, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड दिस रिएक्शन व्हेन वी विल यूज these two reagent, it is called Stephen. This is called Stephen reduction. It is clear? A very important name reaction called Stephen reduction. It is clear? And see one more thing here. On the reduction of nitrile, we use the different kinds of reagent. Clear? And here is a most popular reduction reducing agent is that what is very important. हम यूज कर लेंगे उसका एक बार, क्या होता है. And this one is known that Debal H. Debal H. Clear? काफी मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट आप यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड फॉर द रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स ऑल्सो.
ठीक है, ईस्टर्स का भी क्या करेगा, रिडक्शन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए डिबाल एच, ठीक है, एक अल्टरनेट यूज कर रहे हैं, एंड जहां पर आपने SnCl टू HCl लिया तो आप उसको नेम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, this is your Stephen reduction. It is clear? And see here you have the Debal H. That means Debal H is stand for diisobutyl. Al stand for the aluminium, and H is for the hydride. Clear? So this is your Debal H, diisobutyl aluminium hydrides. ठीक है, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और क्या करता है, स्पेसिफिक किसे रिड्यूस करेगा, वन ऑफ द नाइट्राइल्स एंड वन ऑफ द एस्टर्स। क्लियर, बात करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग काफी ज्यादा। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम लोग एक हम सीरीज प्रिपेयर करेंगे अपने लिए फॉर द रिडक्शन ऑफ, या सिंपली बाय यू कैन से द रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। ठीक है, आपने देखा रोजेनमुंड भी कर रहा है, स्टीफन भी कर रहा है, डिबाल एच भी कर रहा है। ठीक है, कुछ एक हमने और डिस्कस किए थे, वो भी हम लोग लगाएंगे। एंड कौन सा रिएजेंट किसको परफेक्टली रिड्यूस करेगा उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग रिडक्शन का, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन का। ठीक है, वहां भी काफी ज्यादा यूज करेंगे रिएजेंट, क्या होंगे, लेट्स सी। सो दिस इज योर डिबाल एच, that means diisobutyl aluminum hydride, and this Debal H is also work same like Stephen reduction. ठीक है, उसमें भी क्या करेगा, आपके पास क्या है, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल्स जो है, आप नाइट्राइल्स वगैरह रिड्यूस कर रहे हैं बाय Debal H, किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीन्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू एमीन्स, दैट मीन यू हैव अगेन इट प्रिपेयर RCH double bond NH, imine you have, and imine on further hydrolysis, that means this H2 positive gives you corresponding or CHO, that means aldehyde. Clear? So this is your Debal H, diisobutyl aluminium hydride. Clear? ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है और काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद द Debal H। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है, और मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, फर्दर एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सपोज आपके पास था CS3 CS2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O C2 H5. Suppose you have this kind of compound you have. So what happen this compound with the Debal H? So what happen in this case is that when in this compound here you are seeing that here you have the CS3 CS2 the whole 9 C double bond O C2 H5. So this is your ester. ठीक है, ईस्टर आपके पास है, तो ईस्टर में क्या होगा, दिस ईस्टर इज कॉल्ड द मिथाइल अनडेकोनेट। क्लियर, दैट मीन आपके पास क्या है, ईस्टर्स है, दिस इज मिथाइल, तो मिथाइल अनडेकोनेट। क्लियर, it react with Debal H, and we know that in Debal H we also use the hydrolysis process, that means you have the H2O. ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली क्या होगा, जो आपका एस्टरिक ग्रुप था वो क्या होगा, डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा इन द केस ऑफ Debal H. क्लियर, हमें ज्यादा कुछ कहीं पर ढूंढना नहीं है, क्या करना है, दिस विल बी रिड्यूस आउट। ठीक है, क्या कर देंगे, ये जो आपके पास था दिस टाइप ऑफ OC2H5, दिस विल बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन एंड H इज कम्स हेयर एंड इट विल रिमूव आउट। ठीक है, तो ये होगा आपका रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स। क्लियर, रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स, दैट मीन द प्रोडक्ट यू हैव अगेन
the CH3 CH2 whole 9 C double bond O and H undiagonal. ठीक है, undiagonal. It is clear? So this is your aldehyde and this is your esters. क्लियर? दैट मीन एक बात और नोट कर लिया हम लोगों ने कि जो जब एस्टर्स का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ डिबाल H, तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा. क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा. इट इज क्लियर? दैट मीन कीटोन बनने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास. ठीक है, अगर सब कुछ क्वेश्चन आता है आपके पास कि दिस इज गोइंग टू रिड्यूस अंडर डिबाल H एंड प्रोडक्ट आपको मिला है एल्डिहाइड कीटोन, या फर्दर आपको प्रोडक्ट मिला है कोई और, तो हम लोग किसको चूज करेंगे? एल्डिहाइड को. वाई? बिकॉज डिबाल H क्या कर रहा है आपका? केवल इसको रिड्यूस कर रहा है फिलहाल, जब तक हमने अभी कीटोन्स का प्रिपरेशन नहीं देखा बाय स्पेशल मेथड. ठीक है, तो बात कर लेते हैं. आपका डिबाल H हो गया आपके पास, काफी अच्छा था. चलिए, नाइट्रस का कर लिया डिबाल H ने एंड ईस्टर्स का कर लिया. ठीक है, तो एक एग्जांपल फिर देख लेते हैं. सपोज डबली बॉन्डेड कंपाउंड यू हैव, या दिस टाइप ऑफ कंपाउंड यू हैव द CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN. Clear? 1 2 3 4 5 6. That means you have heads 4 in 1 nitride. ठीक है, नेम लिखना चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं हम लोग. क्लियर? IUPAC नेम. एंड आई एम अगेन रिपीटिंग दैट द प्रैक्टिस विद द IUPAC नेम. ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड क्या बन रहा है. ठीक है, तो बार बार हैबिचुअल में रहेगा कि दिस विल इज फॉर्मिंग हियर, या दिस इज रिएक्टिंग विद दिस वन, तो याद रहेगा. बिकॉज देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. दैट मीन द हेड्स you have heads. Clear? Nitrous have the priority in IUPAC name. That means the 1 2 3 4 4 in and the 1 nitrites. 1 nitrite. So this is your reacting compound, reacting with Debal H, and H2O. Clear? So किसका रिडक्शन हो जाएगा? इस जो आपका साइनो, जो आपका साइनो था या नाइट्राइल जो आपके पास था, वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए क्या आएगा लास्ट टाइम. देखिए आपके पास था क्या? एक कंपाउंड बना था इमीन टाइप. ठीक है, फिर इमीन आपका फर्दर ट्रांसफर हुआ था इन दिस मैनर. दैट मीन 1 2 3 4 5. दैट मीन हियर CH. यू कैन से डायरेक्टली रिमूव बाय द H. क्लियर? सो ये आपके पास है आपका रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ डिबाल H. ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए. क्या आएगा आपके पास? CN को रिमूव करवाइए. ठीक है, अब बड़ा चांसेस ये हमारे पास है कि यहाँ पर H आएगा आफ्टर रिमूविंग CN. ठीक है, अगर H आता है तो ये बन जाएगा आपका CH3 है. ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर लिया आपने? एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, बट आई टोल्ड यू अर्लियर दिस नाइट्राइल्स इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड. सो व्हाट विल हैपन? देखिए एक बार क्या निकल जाएगा. ठीक है, यहां तो आपने कहा था कि 2 स्टेप्स में रिएक्शन फॉलो कर रहे थे आप लोग. द फर्स्ट स्टेप व्हेन रिएक्टिंग, देन सेकंड स्टेप इज इमीन रिएक्टिंग. ठीक है, इमीन भी रिएक्ट कर रहा है आपके पास. ठीक है, तो हम डायरेक्टली इमीन ना बना के, या चाहो तो इमीन बना लो CH डबल बॉन्ड NH है. ठीक है, यहाँ पर अगर इमीन बनाते हैं तो क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, अब आपके पास एक CH तो आ गया. ठीक है, देन उसमें क्या इंट्रोड्यूस होना है? इन दिस मैनर यू हैव CH3 CH double bond CH CH2 and here you have CHO. 1 2 3 4 5 6. This is your CH. ठीक है, तो ये बना आपके पास एल्डिहाइड फ्रॉम योर हेक्स 4 in 1 nitriles. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर डिबाल H एंड योर स्टीफन रिडक्शन. क्लियर? स्टीफन रिडक्शन में आपने क्या बोला कि आपका जो नाइट्राइल्स होगा किससे रिएक्ट कर रहा है? आपका स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड डिबाल H इज स्टैंड फॉर डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर रिडक्शन ऑफ
aldehyde, या reduction in aldehyde of nitriles and esters. So now class, you can also prepare your aldehyde by the hydrocarbons. So see, look at point 2 towards from the hydrocarbons. So the C part is that from hydrocarbon, from hydrocarbons. Clear? Now see that suppose I want to make the aromatic aldehyde. ठीक है, अभी तक आपने देखा कि सारे के सारे रिएक्शन में आपको क्या मिला, कोई ना कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड ही आप लोगों को मिल रहा है. ठीक है, चाहे रोजेनमून करवाइए, चाहे स्ट्रेफिन करवाइए, या चाहे फिर आप क्या करवाइए, डिवार-एच का रिडक्शन करवा दीजिए. ठीक है, तो आपको क्या मिला, हमेशा एलिफेटिक मिला. अब मुझे एरोमेटिक चाहिए होगा, देन व्हाट वी यूज इन द केस ऑफ एरोमेटिक. ठीक है, देखिए एरोमेटिक के केस में हमें सपोज क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिल सकता है या फिर इट्स डेरिवेटिव्स हमें मिल सकते हैं बेंजल्डिहाइड के. ठीक है, तो द फर्स्ट हम मेथड पढ़ते हैं आपका ए अंडर सेक्शन ऑफ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ठीक है, या कह सकते हैं फ्रॉम मिथाइल बेंजीन. ठीक है, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन या फ्रॉम टॉलिन यू हैव द बेंजीन एंड द CH3. ठीक है, तो यूज क्या करेंगे हम लोग, बाय द क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2. ठीक है, दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, आपने कहा हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड. ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, और रिएजेंट आप लोग यूज कर रहे हैं आपका क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, अब देखिए क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होगा, मैंने आपसे पहले बोला था फ्रॉम दी मिथाइल बेंजीन. ठीक है, तो ले लेंगे मिथाइल बेंजीन. आपके पास क्या है, मिथाइल बेंजीन, दैट मींस यू हैव बेंजीन एंड यू हैव द मिथाइल CH3. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यू आर टेकिंग द क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2. ठीक है, तो ये जैसे ही आपको रिएक्शन देता था, जैसे ये दोनों रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनाएगा, आपको एक क्रोमिक कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्या बनेगा, फर्स्टली फर्स्ट स्टेप में बनता है क्रोमिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब जैसे ही क्रोमिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स क्या करेगा आपका, समटाइम आपका स्टेबल रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा. एंड जब डिकम्पोज होगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू एल्डिहाइड. ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस. सो यू हैव अगेन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस. सो योर रिएक्शन इज कंप्लीट ओनली इन वन स्टेप. So you have now benzaldehyde, that means in this manner CH2. Clear? This is from your hydrocarbon. Clear? हाइड्रोकार्बन क्या आपके पास, मिथाइल बेंजीन आपके पास है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थे आपके पास, मिथाइल बेंजीन या कैन से टॉलिन यू हैव. ठीक है, टॉलिन को आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, आपका क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं. क्रोमाइल क्लोराइड दैट मीन CrO2 Cl2. And under on hydrolysis process, it will convert into aldehyde. It is clear? And again, you can prepare by the chlorination of. ठीक है, chlorination कर दीजिए. Chlorination. ठीक है, किसके क्लोरिनेशन करते हैं, इसी का कर देते हैं. देखिए क्या मिलेगा आपको, CH3 टॉलिन आपके पास है. क्लोरिनेशन कहां होता था, वी ऑल नो दैट Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, पता है हम लोगों को. ठीक है, और करते क्या थे, क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे हम लोग, CuCl. ठीक है, सारे रिएक्शन आपका पुराने चैप्टर्स का ही है, दैट मीन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का. क्यूप्रस क्लोराइड है आपके पास CuCl, या आप लेते थे वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट मीन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 भी लिया आप लोगों ने. ठीक है, तो देखिए जब फर्स्टली क्लोरिनेशन आपके पास होगा तो क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल रिमूव आउट एंड रिएक्ट विद द H to become hydrochloric acid, that means HCl, and one Cl will be attached here. ठीक है, that means the CH2 Cl.
ठीक है। अब याद करिए, आपने जब हेलो एल्किन्स का चैप्टर्स पढ़ा था, वहां आपने कहा था द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में आपने कहा था कि CH2 रिएक्ट कर रहा है आपका Cl2 के साथ, ठीक है। फर्स्टली क्या बना था CH3Cl, आपने कहा था अगेन फर्दर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना था CH2 Cl2, अगेन रिएक्ट कर रहा था तो CCl3, ठीक है। तो आपका बार बार क्या होता है, क्लोरिनेशन प्रोसेस चलते रहता है इन द कंटिन्यूअस मोशन। बट यहां पर क्या होगा, आपका रोक देंगे रिएक्शन को, ठीक है, सिंपली। तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन एंड CH2Cl, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, दैट मीन करवा लीजिए आप लोग। अगेन इफ यू आर यूजिंग द S2 लिखेंगे, ठीक है, एंड दिस वन इज कन्वर्ट इनटू CHO, अगेन यू आर गेटिंग द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन आपके पास बहुत छोटी रिएक्शन थी। द फर्स्ट इज द क्रोमाइल क्लोराइड एंड सेकंड यू हैव बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। इट इज क्लियर। नाउ एक काफी ज्यादा एक रिएक्शन आती है आपके पास, रिएक्शन का नेम है आपके पास गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब गैटरमैन कोच में क्या कहानी होती है, गैटरमैन कोच भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होती है, सेम रिएक्शन होता है आपके पास गैटरमैन कोच के अंदर भी। एंड गैटरमैन कोच में क्या करते हैं आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है उसमें भी, अगेन बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए क्या रिएक्शन आपके पास है। देन वी डू गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्लियर। तो देख लेते हैं हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच करवा रहे हैं